شاید یقین کریں گے کہ ایک پسماندہ معاشرے سے جس کی بنیاد باہمی شک و شبے، منافرت، کم علمی اور توہم پرستی پر ہو، وہاں سے ایک اخبار جاری کرنے کا خیال، ایک انگریزی اخبار جاری کرنے کا خیال تھوڑی بہت جرت کا تقاضا تو بہرحال کرتا ہے۔ اب وقت پیسہ اخبار کا نہیں ہے، اب اسپیس شٹلز اور اسکائی ٹیلی ویژن کا دور ہے۔ آج کا ریڈر پیبلو نیرودا اور ہوچی مین کی نظمیں پڑھتا ہے۔ چنانچہ اخبار کی زبان اگر انگریزی ہے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اخبار کسی بھی کمیونٹی کی آواز ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اخبار کا نام پیپلز وائس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے سماج کے پیشے طبقوں کو اس اخبار کی صورت میں ایک زبان مل جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ آواز سچ اور حق و صداقت کی سب سے بڑی علامت بن کے ابھرے گی۔ شکریہ۔ آپ سب کے ارد گرد یہ پھیلتی ہوئی دنیا اور اس کا نظام اسٹیٹک ہرگز نہیں۔ ہم ایک انتہائی ڈائنامک معاشرے کے فرد ہیں جس میں تبدیلی کا عمل بڑی تیزی سے جاری ہے۔ قدرت کی ڈائلیکٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تبدیلیوں پر پڑنے والی سب سے پہلی نظر آپ کی ہونی چاہیے۔ معاشرتی تبدیلیوں کی اطلاع قاری تک آپ ہی کو پہنچانی ہے، رائٹ؟ فی الحال تو مجھے یہی سب کچھ کہنا ہے۔ اگر ذہن میں کوئی بات صاف نہ ہو تو گفتگو ہو سکتی۔ سر، صورتحال تو تقریباً واضح ہی ہے، لیکن ہماری آسانی کے لیے بہتر ہوگا اگر آپ ایک مثالی اخبار کی کوئی تعریف متعین کر دیں۔ دیکھیے سر، ایکچولی یہ ریٹرکس مجھے کبھی اپیل نہیں کرتے۔ ایک سیدھی سی بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی نیوز کوریج ون سائڈڈ نہ ہو، اسے بیلنسڈ ہونا چاہیے۔ آپ کی سبنگ ٹھیک ہونی چاہیے، رائٹ؟ یعنی دیکھیے نا، آپ کے جو یہ تازہ ایشوز ہیں یہ پر وقت قاری کو ملنے چاہیے۔ آپ سب رپورٹرز ایسا کیجئے کہ اپنی اپنی فیلڈز بانٹ لیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ذرا آسانی بھی رہے گی آپ لوگوں کو اور ذمہ داری کا احساس بھی بڑھ جائے گا۔ اسد، آپ کے لیے کلچر اور ایجوکیشن کیسا رہے گا؟ تھینک یو سر، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ہاں، ذرا دیکھ لیجئے، باہر سے بڑا گلیمرس لگتا ہے لیکن اکثر لوگ لکھتے وقت اسپاٹ ہو جاتے ہیں۔ سر، مجھے اندازہ ہے اس کا، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کی نوبت نہ آئے۔ سیمی صاحب، آپ پالیٹکس سنبھال لیجیے گا، اپنے ساتھ کوئی ایک شخص لے لیجیے گا۔ جی دیکھیے، ہماری سیاست جو ہے نا، اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ ہی سیٹ سے آگے نہیں بڑھی۔ جی، ہماری کوشش ہوگی کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ ایوب، آپ ایسا کریں کہ کرائم، حادثات تھانے کچہریاں لے لیں، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ون سائڈڈ سٹوریز کو اوائڈ کرنا ہے آپ نے، بیکاز یو نو they bring bad name to the paper. Remember. Okay? دوسری بات یہ کہ کسی خوف، ترغیب، لالچ کی وجہ سے اگر آپ کسی بات کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں تو ریڈر کے ساتھ آپ کی جو کریڈیٹیبلٹی ہے وہ کبھی نہیں بن پائے گی۔ مائنڈ اٹ۔ اوکے؟ سمین بیوی، آپ خواتین پہ لکھیں گے؟ تو آج کل آپ خواتین پہ ادھر ادھر اخباروں میں چھپا ہوا پڑھتی بھی ہوں گی۔ یس سر۔ تو ایسا ہے کہ آپ نے اس میں باقی تو سب کچھ پڑھا ہوگا، یعنی سب کچھ ہوتا اس میں، لیکن خواتین کے اصل مسائل غائب ہوتے ہیں، جی، جو میرا خیال ہے ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کچھ کریں گے؟ کب آپ فرائیڈے میگزین کریں گی؟ جی سر، پروگرام تو یہی ہے۔ رائٹ، کوشش کریں لوکل رائٹرز کو انوالو کرنے کی، ایشوز پر لکھوائیں، لوگوں کی مشکلات پر لکھوائیں، بلکہ خود لکھیں، ٹریفک پہ، مہنگائی پہ، توہمات پہ، لاٹس آف تھنگس، یعنی ہر چیز پہ لکھیں آپ۔
जी सर, मुझे अंदाज़ा है। इनसे मदद लिया करूँगी, ये गाइड भी क्या करेंगे। हाँ, कार्टून, तस्वीरें और इलस्ट्रेशंस, अब तो मैगजीन को पूरे 12 मसाले की चाट बनाना पड़ता है। अच्छा, आपस में सलाह मशवरे से इंसान बहुत कुछ सीखता है। क्यों अयाज, मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? जी, सीखना चाहिए सर। जिस दिन आर्टिस्ट ये समझ ले कि उसको सब कुछ आता है, उस दिन उसकी डेथ हो जाती है। I mean, उसका जवाल शुरू हो जाता है। That's the point. All right then. I wish all of you a very happy writing. ये आजकल लेआउट कौन करा रहा है? क्यों साहब, कोई घपला हो गया? भैया आप लोग ये क्यों समझते हैं कि रीडर सिर्फ फ्रंट पेज ही पढ़ता है? भाई जिसने अखबार खरीदने का तकल्लुफ किया है वो बाकी के पेजेस भी यकीनन पढ़ेगा। आपके अंग्रेजी अखबार को इतना लाउड नहीं होना चाहिए। ये हेडलाइंस को इस सलीके से लगवाइए कि ये खिचड़ी ना पके। These barking headlines don't fascinate anyone. मेरा ख्याल है सर कुछ स्टाइल बदलते हैं, चेंज अच्छा रहता है। और ये स्टॉक एक्सचेंज के रेट्स देख रहे हैं आप किस पॉइंट पे जा रहे हैं? इतनी बारीक टाइप कौन पढ़ेगा? और ये न्यूज़ की कंटिन्यूटी कहीं बैक पेजेस पे चली गई है। What is all this? आप हसन साहब आप कुछ कीजिए इसका, ये this is very bad. जी सर। ये जरा इसको आपको बीबी को पहुंचाओ। यस, पीपल्स वॉइस जी बोल रहा हूँ। क्या? अरे यार भाई ज़रा देखने, ये कोई दिया खान से खबर दे रहा है। हम खुद ही सुन लेते हैं यार क्या कहता है। हेलो जी 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 जी, लिखवाइए, मैं लिख रहा हूँ। जी, लाहौल वाला सर, ये तो किसी पटवारी के तबादले की खबर दे रहा है। यार उसे कहो कि माफ कर दे हमें, क्यों मजाक बना रखा? सर उसने तो ऐसी खबरों का पूरा पलंदा रखा हुआ है। सर वो कैलाश लोगों पर मेरी स्टोरी अगर आप पढ़ लेते तो अच्छा रहता सर। हाँ, वो जो अंग्रेज खातून ने कैलाश के बारे में कोई लेक्चर दिया था, उसी की बात हो रही है ना? हाँ सर, वही उसी की बात कर रहा हूँ। यार तुम यूं करो कि उसकी मोटी मोटी बातें जरा मुझे जुबानी बता दो, मैं उसे कंपोजिंग के लिए भेज देता हूँ। अंग्रेजी तो तुम्हारी ठीक ही होती है। हाँ, ये तैयार करके मुझे आज ही ऑफ भी लेना है। मेरी बेटी भी क्या सोचेगी कि उसके बाप को उसकी शादी पर आने की भी फुर्सत नहीं। सर वो मोटी मोटी बातें तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आप मेरा मजमून पढ़ लेते तो बेहतर हो जाता जी। हाँ हाँ पढ़ लूंगा, लेकिन आगे तो बताओ और क्या कहा उसने? सर उसे सबसे बड़ा एतराज मुल्की और गैर मुल्की सियाहों पर था जो हर किस्म की खराबी जाकर इस तबके में मुतारिफ करा रहे हैं, और फिर बिलखसूस वो होटल मालिकान जो कि इन सयाहों को रिहाइश और दूसरी सहूलतें फराहम करते हैं। ओह नहीं यार, ये होटल मालिकान का जिक्र निकालना पड़ेगा इसमें से। लेकिन सर ये तो वो कह रही है, हम तो नहीं कह रहे ये बात। बहरहाल चलो आगे बताओ और क्या करें? असल बातें तो उसने आगे ही चल कर की थी, लेकिन जब आप होटल वालों से ही डर गए तो फिर ये कैसे सॉल्व करेंगे सर? रासद हेलो, पीपल्स वॉइस। सर आपके ख्याल में हमारे मैगजीन की कुछ शक्ल निकल रही है या अभी नहीं? शक्ल तो बहरहाल कुछ न कुछ होती ही है, भली या बुरी। सर आपके ख्याल में इसमें कोई कमी है? देखिए असल में अखबारों के फ्राइडे मैगजीन्स में एक चीज़ होती है जिसे प्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं।
उसमें यूँ होता है कि रीडर पहले से फॉल्सी कर लेता है कि इस मैगज़ीन में ये चीज़ आनी है इस हफ्ते या आनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में अब तक आपके मैगज़ीन में ये चीज़ पैदा नहीं हो सकी। अच्छा, इस हफ्ते क्या क्या ले रहे हैं आप लोग? सर इस हफ्ते तो मंटो की एक कहानी की ट्रांसलेशन ले रहे हैं हम लोग। वैसे पढ़ लीजिएगा उसको, शोर न मचे, क्योंकि लोग टची से हो रहे हैं आजकल। नहीं सर, बिल्कुल बेज़रर सी है, मंटो की तो लगती नहीं, और फिर ट्रांसलेशन हो गया तो और भी टेम नज़र आ रही है। इसके अलावा क्या क्या है? इसके अलावा साइकोलॉजी की कुछ लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी की, शायद एमफिल वगैरह कर रही हैं। उन्होंने मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोगों से एक सर्वे किया है शादी ब्याह के रिचुअल पर। अच्छा, नहीं, इसके बावजूद लोग फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट्स को कहते हैं कि जी ये अपना प्रैक्टिकल वर्क कम करते हैं और सोचते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे सर्वे क्या कहता है? सर उनके कुछ सवाल तो बहुत बोल्ड थे। मसलन सर ये कि क्या भारी भरकम जहेज़ वाकई लड़की के सिक्योर मुस्तकबिल की ज़मानत है, और ये कि क्या तलाक याफ्ता औरतें दूसरे शौहरों के लिए बेहतर बीवियाँ साबित हो सकती हैं। तो इन सवालों में तुमने बोल्डनेस कहाँ से डिस्कवर कर ली? सर मेरा मतलब था कि हमारे माशरे में तो तलाक औरत के ताबूत में आखिरी कील का दर्जा रखती है, लेकिन ये सर्वे वालों का जो सवाल है ये हमें थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर करता है कि एक ठुकराई हुई औरत भी आगे चलकर एक रिफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग का रूप धार सकती है। You're right. ठीक है, लिख दीजिए। Seems to me thought provoking. सर फिर जाइए, थैंक यू। सर मैं शिफ्ट इंचार्ज साहब से आज बात कर रहा था कि पिछले चंद रोज से हमारे पेपर ने बड़ा इम्प्रूव किया। यानी किस सेंस में सर? मसला ये कि मैं हर रोज 4-5 स्टोरीज ऐसी देखता हूँ जो सिर्फ हमारे अखबार में होती, किसी और के यहाँ नहीं होती। सर अब इसे भी आप इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं? ये तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए कह देते हैं सर। और मजे की बात ये है कि ऐसी एक्सक्लूसिव चीजों में से आधी से ज्यादा आपकी होती हैं। थैंक यू सर, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं फिलहाल कुछ माठा ही जा रहा हूं। अच्छी बात है ये। राइटर को कभी मुतमईन नहीं होना चाहिए। स्मगनेस तो राइटर की मौत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। थैंक यू जी। मेरा नाम जी तहसीन अली खान है। मैं हाई कोर्ट बार का सदर। दूसरे साथियों की तरह मैं भी आपका अखबार पढ़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमने अपनी जिंदगी में बहुत से अखबार निकलते और बंद होते देखे हैं। एक आम अखबार की उठान में साल 2 साल का अरसा तो लग ही जाता है, लेकिन हुजूर आपके अखबार ने तो ये काम 7-8 महीने में ही कर दिखाया। शुक्रिया। ये मेरे दोस्त सेठ रईस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर हैं। खासे वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है। अच्छा आपसे मुलाकात हो गई। अजय ज्यादती करते हैं वकील साहब। भला आजकल के जमाने में कौन वेल इन्फॉर्म रह सकता है? बस अंधेरे में टामक टोइयां हैं जितने कोई मार ले। वैसे दुनिया जहान के अखबार तो मंगवाते हैं आप? पीपल्स वॉइस भी पढ़ते हैं या नहीं? जी हाँ, उसकी तो पूरी फाइल बना रखी है मेरी बेटी ने। पढ़ते भी हैं या सिर्फ फाइलिंग बन रही? कोशिश तो करते हैं कि बर वक्त कोई चीज पढ़ ली जाए, लेकिन अजीब वक्त आ गया। एवरीबॉडी सफर्स फ्रॉम टाइमलेसनेस। फ्रैंकली स्पीकिंग, मोस्ट ऑफ माई पेपर्स गो अनरेड।
اچھا دوستوں کی کیا رائے ہے ہمارے پیپر کے بارے میں؟ Oh, it's going strong. Very strong. کوکب وہ شاعر کا انٹرویو تو کبھی چھاپو. ہیلو ایوری باڈی. ہلو. یار ایاز تو تمہارا کل والا کارٹون تو بھائی اچھا خاصا ریئیکشن کر گیا یار. کس کو؟ بھائی وہ سارے ٹیلی فون اسی کے متعلق آ رہے ہیں. اب جسے دیکھو یہی کارٹون ڈسکس کر رہا ہے. جب کوئی دوسری بات ڈسکس کرنے ہی نہ دی جائے تو لوگ پھر کارٹون سے ڈسکس کریں گے. یار دیکھو اب تم نے ڈرنا ورنا نہیں ہے بھائی. کھلے دل سے سوچو, کھل کے کام کرو. ہاں یار میں کوئی کام ہو یار میں گیا. ارے بات تو سنا. ایاز پتہ ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں تم لوگ یہ کارٹونس کیسے بنا لیتے ہو. اچھا تم تو اس دن کارٹون کی پوری تاریخ سمجھا رہی تھی اور آج مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کارٹون کیسے بنتے ہیں. بھائی دیکھو وہ تو ایک طرح سے تھیوریٹیکل نالج تھا نا, پریکٹیکل تو دوسری بات ہے. اور پھر اگر تخلیق کار سے اس کی تخلیق کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر مزہ ہی ہوگا. تم نے اس آدمی کے بارے میں سن رکھا ہے جو شام کے وقت شکر پڑیاں سے اسلام آباد کی بتیاں دیکھ رہا تھا؟ کہتا ہے جب میں نے تھوڑی دیر کے لیے چشمہ اتارا تو وہ ساری بتیاں کھجوروں کے درخت بن گئیں. واٹ اے ڈسکرپشن. ویسے جہاں تک میرا خیال ہے فنکار دنیا کی اونچ نیچ کو سب سے پہلے دیکھ لیتا ہے, یا پھر اسے سب سے پہلے دیکھ لینا چاہیے, کیونکہ وہ ناانصافیوں اور محرومیوں کو زیادہ شدت سے دیکھتا ہے. اچھا اگر میں تم سے پوچھوں کہ تمام کریٹو لوگوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے ہر تخلیق کار فنکار کے لیے بنیادی طور پہ تھوڑا سا شریر ہونا ضروری ہے. اگر شرارت زیادہ آتی ہو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے, لیکن شرارت آنی چاہیے. نشترآباد سے نعیم, وسیم, فہیم, بدوملی سے اللہ وسایا, کالا شکاکو سے رحیم داد, چیچو کی ملیہ. سامعین اس گانے کی فرمائش کی تھی بدملی سے اللہ وسایا, کالا شکاکو سے رحیم داد, چیچو کی ملیہ سے. بس بھائی بند کر اپنا یہ جغرافیہ. ویسے یار یہ لڑکی اب گاؤں میں بھی پاپولر ہو رہی ہے. اس میں شہر اور گاؤں کی کیا بات ہے بھائی, پاپولر چیز تو ہر جگہ پاپولر ہوتی ہے. اب تیرا اخبار کیا صرف شہر میں پاپولر ہے؟ بچو یہ پاپولیرٹی کو اتنی آسانی سے نہیں آئی, تو خود ذرا پاپولر ہو کر دکھانا. میرا دماغ خراب ہے. خدا آرام سے 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے, تجھے ابھی کسی کے ہاتھ نہیں لگے نا, 2 دن جیل کی ہوا کھائی تو سارے انقلاب دماغ سے نکل جائیں گے. یار اب میں کیا کہوں تجھے, تو بے قصور ہے, تیرا کوئی قصور نہیں. لیکن دیکھ میں کتنی محنت سے تصویر بنا کر لاتا ہوں, لیکن تو ان کا فلم بنانے میں ستیہ ناش کر دیتا ہے. کل ایڈیٹر صاحب سٹی پیج کی دونوں تصویروں پر باتیں سنا رہے تھے. تو بچ کر نکل گیا تھا, میری شامت آ گئی تھی. کہنے لگے یہ اسکریچز کہاں سے آ گئے, ذرا اصل تصویر دکھانا. میں یار کیا کرتا, مجبوراً اصل تصویر میں بھی 2-3 اسکریچز ڈال دی. اچھا مجھے پتا تھا تو ایسا کرے گا, اسی لیے ایک کاپی میں نے پاس رکھ لی تھی اور وہی میں نے صاحب کو دکھا دی. ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا, تم مجھے نکلوا دو. 1 دار بند 1000 کھلے. انسان کی شکل اچھی نہ ہو لیکن بات تو اچھی کرے. اچھے منہ والوں نے اچھی باتیں کرنا چھوڑ دی. تو یہ کیمرہ روم میں بہت اچھی شکلیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. جی کچھ دیر پہلے کالی زبانیں بھی ڈسکس ہو رہی تھیں. 2 گھنٹے ہو گئے تمہیں تصویریں دیے ہوئے, اب رحم کرو ہمارے اوپر. اچھا آپ بیٹھے ابھی بنتی ہیں. نہیں تم سلیم جلدی جاؤ, جلدی بناؤ شاباش جلدی اور کرو. دیکھو نہ وہ جیل کی تصویریں آئی ہیں نہ کچی آبادیوں کی. یہ کیا, اگر کسی اور اخبار نے ہم سے پہلے وہ سٹوری کر لی نا تو پھر بس پڑھ گیا آپ پر بھی ایڈیٹر صاحب کا سایہ. ان کو بھی ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کوئی اور اخبار نہ کچھ کر لیں, سارے سیرے ہم ہی باندھتے چلے آئیں. دولہا کہیں کے. دیکھو یہ ان پڑھوں جیسی باتیں اخباروں میں نہیں چلتی. کیمرہ اٹھاؤ, کام کرو, ایکشن, اٹھو. اچھا ایک منٹ. اور ہاں دیکھو وہ شہر میں کوئی سائیکلسٹ آیا ہوا ہے, 3 دن سے مسلسل سائیکل چلانے کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور سارے اردو اخبار اس کے چوکے فرنٹ پہ لے رہے ہیں. تو ہم بھی کم از کم 1 آدھ تصویر چھاپ کے اس کا نوٹس تو لے لینا. آپ کے کہنے سے پہلے ہی لے کر گیا تھا تصویر ایڈیٹر صاحب کے پاس, لیکن الٹا ڈانٹ سننا پڑی. کہنے لگے تمہیں 3 دن سے سائیکل چلانے والا نظر آ گیا, لیکن وہ 3 دن سے جو بھوک ہڑتال کر رہے ہیں وہ مزدور نظر نہیں آئے. آپ ان کے چوکے لگاتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ بس پھر
अपना समूह लेकर वापस आ गया मैं। अच्छा खैर ठीक है, देखो मैं आ रही हूँ 5 मिनट के बाद और तस्वीरें मुझे चाहिए बस ये अभी, फौरन। आप बेफिक्र रहें। सलीम, प्लीज 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 बैठिए। जी हसन साहब, क्या स्टोरीज हैं आज? हाँ जी सर, वो सर 3 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एजेंसी की रिपोर्ट भी आ गई और हमारे रिपोर्टर ने स्टोरी भी बना ली। अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलबा की तरफ से थी, कुछ अनफेयर मीन्स केसेस वापस लेने का मुतालबा, 3rd डिवीजन में पास होने वालों के दाखिले की बात थी और मुश्किल पर्चों का इम्तहान दोबारा लेने की दरख्वास्त। तो कोई दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ जी जी सर, वो हमारे एक दानश्वर बहुत बरसों के बाद अमेरिका से वापस आए थे सर। उन्होंने कुछ बड़ी मज़ेदार बातें की। कहा कि मुल्क के तमाम शहरों में बैक वक्त 3 तहजीबें परवान चढ़ रही हैं। लाहौर में उन्होंने गुलबर्ग की तहजीब, शेरावाला की तहजीब और दारोगा वाला की बात की, और पेशावर में यूनिवर्सिटी टाउन, यकतूत और शाहढंड में बसते लोगों और उनके एक दूसरे से मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद रहन सहन का जिक्र भी किया। हाँ सर, उन्होंने तालीमी पॉलिसी को भी इसी सेरुखी का शिकार बताया। अच्छा, तो ये इस सेरुखी पॉलिसी के बारे में कोई वजाहत तो की होगी उन्होंने क्या? जी हाँ सर, मिसाल भी दी और कहा कि एक तरफ तो एचएसएन और लॉरेंस कॉलेज की तालीम है और दूसरी तरफ दरमियाने दर्जे के पब्लिक स्कूल, और फिर उन सब के नीचे टाटों पर और दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ने वाले बच्चे जो बसों के पीछे लटक कर उनकी छतों पर बैठकर स्कूल आते जाते हैं। कहा कि ऐसे में मुसावात की बात करना परले दर्जे की मुनाफिकत है। हाँ यार, वो कल जो तस्वीर खिंचवाई थी मैंने, उसका क्या किया? उसके सारे रिलीज आया हो गया। हेलो एवरीबॉडी। हेलो भाई साहब, आ गए। क्या बात है भाई, आज सारी फौज यहाँ बैठी है, कल अखबार नहीं छपेगा क्या? भाई, ये मनहूस बातें मुंह से क्यों निकाल रहे हो? छपेगा, जरूर छपेगा। अगर बंद होना भी हुआ तुम्हारे कार्टूनों पे ही होगा मियाँ। अच्छा, और तुम्हारे खबरों को तो जैसे लोग शहद और मिस्री की तरह रिसीव करते हैं। कोई ऐसी खबर नहीं होती जिस पे हंगामा ना हो। याद है वो कॉलेज के वो कॉलेजों वाली नताइज की खबर? हाँ भाई, ये तो तुमने सही कहा। कॉलेज के प्रोफेसरों से जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी और मेरे छोटे भाई को कॉलेज के प्रिंसिपल ने बाकायदा बुला के कहा कि मियाँ उस जगह दाखिला ले लो जहाँ पे नतीजा 100% निकलता है। असल मैंने तुमसे कहा था कि एक तफसीली सर्वे कर दो मैगजीन के लिए, तुम डरते ही रहे। भाई असल में मुझे तो डर अपनी सिस्टर से लग रहा था। कहने लगी कि मैं अपने कॉलेज की तमाम कलीग्स को लेके आ जाऊंगी, अब एक एक सैंडल भी सर पे पड़ा तो सारे बाल उड़ जाएंगे। अच्छा था। वैसे भी गंजों को लड़कियां ज्यादा अमीर समझती हैं, रिश्ते विश्ते ठीक मिल जाते हैं। फजूल बातें आप कुछ कम नहीं कर सकते? कुछ कम कर देना तो आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है। नहीं, जिस्मानी सेहत तो ठीक है, अब इसे ज़हनी सेहत भी बहाल कर लेनी चाहिए। अल्लाह शिफा देने वाला है। अयूब, आपसे मैंने कहा था कि ड्रग्स या मेंटल हॉस्पिटल पे कुछ लिख दें, कुछ हुआ कि नहीं? ड्रग्स पर तो जो कुछ मैंने अब तक लिखा उसका एक लफ्ज आज तक नहीं छपा। एक आदमी पढ़कर कहता है कि एहतियातन फलां को भी दिखा देना। इस देखने दिखाने में मजमून ही गायब हो जाता है। तो चलो, अगर वो लोग किसी से एलर्जिक हैं तो तुम मेंटल हॉस्पिटल पे ही कुछ लिख दो। वैसे मैं जेल पर कुछ लिखना चाहता हूँ। तो जेल पर ही कुछ लिख दो। हेलो मैगजीन। हेलो, सुनो। हाँ मैगजीन देखा इस हफ्ते का तुमने? हाँ देखा। कैसा लगा? एक बात तो बताओ पोपट, तुम ये मैगजीन कब से कर रही हो? क्या मतलब? भाई वैसे ही अपने इत्ला के लिए पूछ रहा हूँ। तकरीबन 2 साल तो हो गए। तकरीबन 2 साल। वैसे आपस की बात है, तुम ये मैगजीन कर नहीं रही हो, भर रही हो। अयाज, you're so ruthless। भाई क्या कमी नजर आती है तुम्हें इसमें? तुम्हारा कार्टून नहीं छपता ना इसमें? हाँ। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था।
नहीं, तुम्हारा मतलब ये था कि हर सफ़े पर तुमसे एक आध इलस्ट्रेशन करा ली जाए, है ना? For God's sake, लड़की, talk sense. नहीं, तो आफ्टर ऑल तुम चाहते क्या हो? अगर मैं तुम्हें रीडर्स के तारीफ़े खतूत दिखाऊं ना तो तुम्हारे होश उड़ जाए। नहीं, मेरा मतलब था कि इस मैगजीन में कुछ अदब वगैरह भी डालो। तो अब मैं हर हफ्ते छांगा मांगा की अदबी डायरी तो छापने से रही ना। तुम्हारा मतलब है छांगा मांगा में अदब पैदा नहीं हो सकता? अगर अदब में छांगे और मांगे पैदा हो सकते हैं तो छांगा मांगा में अदब भी पैदा हो सकता है। अरे हम किन बातों में उलझ गए? मैंने जरा न्यूज रूम तक जाना है। ओके बाय। आपका जेलों का दौरा कैसा रहा? आप बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू। इट वॉज सो हॉरेबल सर। एक अलग दुनिया बाद है। आप अंदर तक कैसे पहुंचे? सर पहुंचने को तो मैं अपना प्रेस कार्ड दिखाकर भी पहुंच सकता था, लेकिन सर क्राइम रिपोर्टिंग में जब किसी को ये पता चलता है कि आप प्रेस के आदमी हैं तो उसकी आधी गोयाई वहीं सर्फ हो जाती है, और आधी गोयाई को वो इस तरह हकलाने और तुतलाने में जाया करने लगता है कि सर। इसका मतलब है कि कोई खास चीज हाथ नहीं लगी? नहीं सर, एक खास बात हाथ लगी सर, और वो ये सर कि जेल में जाते ही कैदी पर तरस आने लगता है। और सर आप यकीन करें कि कुछ कैदी ऐसे थे जो कि सर हमदर्दी के मुस्तहिक होने चाहिए। मुस्तहिक होने चाहिए या मुस्तहिक थे? नहीं सर, मुस्तहिक थे। न सिर्फ हमदर्दी के बल्कि प्यार, मोहब्बत, शफकत और सबसे बढ़कर सर इंसाफ के मुस्तहिक थे। इंसाफ? भाई इसका फैसला तो अदालतों में हो जाने के बाद ही जेल की नौबत आती है। सर क्रिमिनल केसेस में ऐसा हुआ होगा सर, लेकिन सर वहाँ कुछ सियासी नौयत के केस ऐसे थे कि जो साल से यूं ही पड़े हैं सर। कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो ऐसे केसेस में से किसी के साथ तफसीली बात ही कर लेते आप? सर बात मैंने की है सर। एक पढ़ा लिखा वकील था सर, वो कह रहा था कि इतना अरसा जेल में रहने से उसके मौक्कल उसका नाम तक भूल चुके होंगे। और सर जेल वाले कहते हैं उसको कि भाई जिस तरह आप के साथी माफीनामा मांग कर चले गए, भाई आप भी माफीनामा लिख दें। तो सर वो कहने लगा कि मैंने कोई गलत काम या गैर कानूनी काम किया नहीं, तो मैं माफी किस बात की मांगू। और सर जेल वाले उससे कहते हैं कि आप अखबार में ऐलान करवा दें कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो सर उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा मुल्क है और इसकी तामीरी सियासत में हिस्सा लेना मेरा बुनियादी हक है। भाई बड़ी दिलचस्प किस्म की बहस छिड़ गई आजकल लेटर्स कॉलम में। छिड़नी चाहिए भाई। अब मैगजीन में एक या दो सफ़े के आर्टिकल में आप सब सवालों के जवाब तो नहीं दे सकते ना। ऐसे तुमने मौजू बड़ा जबरदस्त लिया है, मुल्क की सियासत में लेफ्ट का रोल। ये बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ तो अभी तक किसी ने डिफाइन ही नहीं किया कि लेफ्ट कहना कैसे है। भाई अब देखो ना, जो कभी जहाज के बगैर सफर नहीं करता वो भी लेफ्ट का है, जिसके घर कोई लिबरल से अखबार आता है वो भी लेफ्ट का है, और कॉलेज में अगर किसी तरक्की पसंद प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड कर लेता है तो वो भी लेफ्ट का बन जाता है। तो बड़ा आसान हो गया है। तुम लोग ज़ाहिरी बातों पर बहुत जोर देते हो। असद का मतलब है कि लेफ्ट की बात सिर्फ वही कर सकता है जो लुम्बा यूनिवर्सिटी में मार्क्सिज्म पढ़ के साइकिल पे वापस आए। भाई देखो, हमारे आर्टिकल में राइटर ने एक बुनियादी बात की थी, गो कि मुझे उससे इत्तेफाक नहीं था, लेकिन बहरहाल उसकी अपनी राय थी, मैंने छाप दी। क्या राय थी उसकी? उसने ये कहा था कि हमारा लेफ्ट कॉम्प्रेडोर लेफ्ट है, जिसकी जड़ें अपने अवाम और मारूज़े हालात में नहीं, बस फलसफा और नजरिया कहीं से उचक कर अपने ऊपर तारी कर लिया। नहीं, वैसे बात तो उसकी ठीक है। तुम्हारे लिए तो हर बात जो छप जाए वो मुकद्दस हो जाती है, फौरन ही मान ले आते हो। बाबा उसने बड़ी इश्तियाल अंगेज बात की थी। देखो ना, किसी ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई बात इश्तियाल अंगेज महसूस हो तो उस पर गौर करो, कहीं वो बात सच्ची तो नहीं। मैंने गौर किया है और ये बात झूठी है। मैंने तो जितने लोगों के तजिए पढ़े या सुने हैं
उनसे तो यही लगता है कि ये ड्राइंग रूम दानिश्वरी से ज्यादा कुछ नहीं। अयाज तुम खामखा स्टेटमेंट्स ना जारी कर दिया करो, कभी सोच भी लिया करो कुछ। एक छोटी सी बात बताओ कोकब, बुरा मत मानना, क्या? कि तुम्हारे दानिश्वर जो किसान की बात करते हैं, इनमें से कितने हैं जिन्होंने उनके पांव की फटी हुई एड़ियां देखी है, थानेदारों को उनके मूंछों के बाल उखाड़ते हुए देखा है? अयाज, फॉर गॉड सेक, जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। जब तुम्हें उनके दुख, उनके एगोनीज का अंदाजा नहीं है, तो फिर गलत किस्म के तजिए छाप के उनकी कॉज को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो? देखो, मैं किसी कॉज को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, ना मैं ऐसा सोच सकती हूँ। दूसरों से डिफर करने के भी कुछ आदाब होते हैं, जो अफसोस है तुम ये आदाब भूल रहे हो। जहां पे भी गलत बात और गलत सोच का प्रचार होगा, मुझे आदाब याद नहीं रहेंगे। तो सीधे सीधे कहो ना, तुम मिसबिहेव करने की ठान कर आए हो। तुम जो भी समझ लो। ऑलराइट। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि एग्जीबिशन में कैमरा किस पर जाना चाहिए था। अच्छा, अब फोटोग्राफी और कैमरा वर्क मैं नए सिरे से तुमसे सीखूंगा। ये शिफ्ट इंचार्ज बैठे हैं, तुम इनसे पूछ लो कि मैंने तुम्हारी एग्जीबिशन की 4 तस्वीरें न्यूज रूम में दी थी। अब उनको मैं एडवाइस करने से तो रहा कि ये तस्वीर छाप दो और ये छोड़ दो। आई एम सिंपली फोटोग्राफर यार। वैसे आप कौन सी तस्वीरें चाह रहे थे? मैं किसी खास पर इंसिस्ट नहीं कर रहा था सर, लेकिन सर ये देखें, अब ये भी तो इंसाफ नहीं है ना। यूं लगता है गोश्त खरीदते हुए लोगों की तस्वीर उठाकर छाप दी अखबार में, और ऊपर से असद साहब ऐसी मरी हुई स्टोरी बनाई कि जान ही नहीं थी उसमें। यार, अब इतनी भी सेल्फ प्रोजेक्शन अच्छी नहीं होती। अगर अपने मुंह में मिट्ठू बनना ही है तो फिर अखबार का नाम कुछ मास्टर्स वाइस किस्म का रख लेते हैं। यार पानी तो यार तुम लोगों ने खामखा इस नरगिसियत के शिकार आदमी को प्रोवोक कर दिया। और सर मैं तो अच्छी खासी तस्वीर लेकर आया था ऑटोग्राफ लेती लड़कियों की, लेकिन कोकम ने खड़े खड़े फाड़ के फेंक दी। तुम ऐसा करो, कल के अखबार में फ्रंट पेज पे एक इश्तिहार बुक करो कि मैंने तुम्हारे एक मास्टरपीस ज़ाया कर दिया है, जिस पे कल को तुम्हें कोई अवार्ड मिलने वाला था। और वैसे ओवरऑल आपकी एग्जीबिशन अच्छी रही। पता नहीं सर, अच्छी रही कि बुरी रही, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। अब इसे तो उठा लो, इसे तो फाड़ के आप नहीं फेंक सकती। मेरा जरा गला खराब है। यार क्या बात है, दुनिया जहां में सुलह सफाई की बातें हो रही हैं और तुम दोनों में सरजंग चल रही है। जंग सर्द हो या गर्म, इंसान को इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। सर यस, कम इन। आइए आइए। सर थैंक यू सर। आप में से किसका ताल्लुक पानीपत से है? यानी अखबार में तो हम जंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और खुद अखबार में लड़ाई चल रही, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं सर, एक्चुअली झगड़ा वगड़ा सच कोई नहीं चल रहा, लेकिन बाहर से इसकी शक्ल कुछ ऐसे बन गई है कि आउटसाइडर देखकर इसको यही नाम दे सकते हैं। अच्छा, और इनसाइडर्स क्या कह रहे हैं इस बारे के? सर मेरा ख्याल है यार सब शायद ठीक कह रहे हैं। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कि एनालाइज करूं, लेकिन इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट सर। लेकिन सारा टाइम जो है ना, वो बाहर की दुनिया के तज्जियों में नहीं गुजार लेना चाहिए। ये थोड़ा सा वक्त अपनी स्कैनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी नाराज़गियाँ कभी गैर अहम नहीं होती। देखिए, ये
اکثر بڑے بڑے انقلابات کو جنم دیتی. وہ ناراضگیاں بڑے انسانوں کی ہوتی ہیں. وی آر جسٹ نو بڈیز. آپ خود ہی یہ موقع نہیں دیجیے کسی کو کہ کوئی دفتر میں یا دفتر سے باہر اسی ٹیبل ٹاک بنائے. اوکے؟ ناؤ both of you a very good smile. That's it. ہلو، السلام علیکم جی. نوازش ہے آپ کی؟ جی مجھے میسج مل گیا تھا. آج صبح کی فلائٹ سے واپس پہنچا ہوں. جیسے وہ کہتے ہیں نا، یہاں کا پولوشن میرے اخبار کا پیدا کر دا. ارے صاحب، ہم تو ان لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو پولیٹکس کو پولیوٹ کرتے ہیں. ہم بلا پولوشن کیوں کر پیدا کرنے لگے؟ جی سنیے، آپ کو کیا سیٹسفیکشن ملتی ہے وہی مخصوص کلیشز دہرا کر؟ ایڈیٹر صاحب انتہائی صاف ستھرے ذہن کے آدمی ہے. ان سے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، بلکہ تفصیل سے بات ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے، میں پھر بھی بات کر کے دیکھ لوں گا، لیکن آپ اس معاملے میں مجھے معافی رکھے تو بہتر ہے. جی اوکے جی، اوکے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے. تھینکس. ملک صاحب آپ پہنچ گئے جی؟ پہنچ تو گیا، لیکن آپ کے یہاں ٹک کے بیٹھنے نہیں دے رہے. اب کون تھا؟ کوئی ایک ہو تو بتاؤں بھی. اب تو ہر ایک کے پیٹ میں درد ہے. وہ کہتے کیا ہیں جی؟ کہنے کو ان کے پاس کیا ہے، وہی پرانا رونا دھونا کہ پولیس پہ ذرا ہاتھ نرم رکھنا، ایجوکیشن کو نہیں چھیڑنا، ہیلتھ کی طرف نہ دیکھنا. خدایا، اس کو نہ دیکھنا، اس کو نہ دیکھنا، تو بابا پھر آخر کیا دیکھنا؟ ان کا مطلب ہوگا میلے مویشیاں دیکھنا. اب تو وقت آ گیا ہے کہ مویشی ہمیں دیکھے. سالانہ میلہ اشراف المخلوقات. لیکن ملک صاحب یہ میلے تو ماہانہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا مطلب ہے ہر پیڑے پر؟ فیاض، تم نے کبھی سوچا ہے کہ سرف کے پودے ہمیشہ قطاروں میں کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اسکول کی بچوں کی طرح بعادت، ریڈی ٹو مارچ. سر کے ان پودوں میں تو کبھی کبھی مجھے اپنی ہی ٹریجڈی نظر آتی ہے. کیا مطلب؟ ساری عمر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑے رہتے ہیں لیکن مل نہیں پاتے. ہم سے تو خیر یہ بہتر ہی ہیں. ساری عمر ایک دوسرے کے قریب تو رہ سکتے ہیں، دور رہنا تو ہمارے ہی نصیب میں. ایک تو تم لڑکی لوگ ساری عمر نصیب کے چکروں میں پڑی رہتی ہے. دنیا مریخ پر اتر رہی ہے اور تم لڑکی لوگ اب تک نصیب کے ہیر پھیر میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے. اچھا دیکھیں، یہ اب اپنے سائنسی نقطۂ نظر سے شاعرانہ ماحول کو خراب مت کریں. اچھا، تو شاعری کے لیے مواد اکٹھا ہو رہا ہے. اب شاعری کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کی نا تو میں تمہیں کسی درخت کے ساتھ باندھ دوں گی. تم ایک درخت کی بات کر رہی ہو، میں تمہیں یہاں ہر درخت سے بندھا ہوا نظر نہیں آتا. بڑے شرم کی بات ہے. کیا پرنسپل صاحب کو سٹیچز بھی آئے ہیں؟ ہاں، ہیڈ انجریز تھیں. وہ تو آنے ہی تھے. ویسے نقل سے تو استاد ہمیشہ ہی روکتے آئے ہیں. ایسا تو آج تک نہیں ہوا کہ لڑکی اٹھ کر پرنسپل کا سر پھوڑ دے. لیکن سر، اب نقل سے روکنے والے استاد رہ ہی کتنے گئے ہیں؟ امتحانی سینٹروں کے باہر بیٹھ کے پرچہ حل کرانے والوں میں استاد بھی شامل ہیں. اب اگر ایک کالج سٹاف کے ادارے میں 100 میں سے ایک آدمی بھی نقل کراتا ہے تو باقی 99 کب تک اپنی نیک نامی کا کدبہ اٹھائے پھریں گے سر؟ ویسے جو پرنسپل صاحب زخمی ہوئے ہیں، یہ انہوں نے کہا کیا تھا؟ یہی سر کہ نقل کرنے والوں کو میری لاش کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا. اب جب گائیڈز اور نوٹ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ملی تو سر پھٹول شروع ہو گئی. یہ آپ کا وہ فیچر کہاں تک پہنچا اسٹوڈنٹس وائلنس پہ؟ سر، وہ میرے فیچر کا وہ حصہ بڑا مزیدار ہے جس میں نے کچھ ریٹائرڈ ماہرین تعلیم کے انٹرویوز شامل کیے ہیں. یہ لوگ ریٹائر ہونے کے بعد ہی کام کی بات کیوں کرتے ہیں؟
सर्विस के दौरान तो बात करने से भी डरते हैं। बड़े जुल्म की बात है। सर वो अंग्रेजी अदब के एक पुराने उस्ताद हैं, कहने लगे कि पढ़ाने वालों में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोग शामिल होके आ गए जिनका पढ़ाने का कोई टेम्परामेंट नहीं। तो बेशतर अदारों में सूरत हाल ये है कि केपेबल लोग तो कोने खुदरों में पड़े हुए हैं और मीडियाकर लोग या तो ऊपर आ गए और या आने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो किसी हद तक आपकी बहुत ठीक है। वैसे वो स्टूडेंट्स वॉयलेंस पे क्या कहते हैं? सर स्टूडेंट वायलेंस पे वो खासे क्लियर थे। कहने लगे कि जब तलबा अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हर चीज़ में कामयाबी तशद्दुद के ज़रिए हो रही है तो खुद ब खुद बंदूक उठा लेते हैं। अब जब वो बाहर की दुनिया में देखेंगे कि हर चीज़ कानून और इंसाफ से उन्हें मिल जाती है तो बंदूक रेलेवेंट हो जाएगी ना सर। यू राइट। लेकिन अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। सर मैं एक लड़की को इंटरव्यू कर रहा था तो कोटा सिस्टम पे वो रो पड़ी। कहने लगी कि सिर्फ 3 नंबरों की वजह से मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में रह गया, जबकि मुझसे कहीं ज्यादा कम नंबर वालों को मखसूस कोटे पे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। सर बात यह है कि आखिर हम कब तक हाफ बेक किस्म के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा करते रहेंगे? ये दाखिले हम ओपन मेरिट पे क्यों नहीं कर देते सर? हाँ, ये भी खासा डिस्कसेबल टॉपिक है। इस पे बाद में बात करेंगे। आप वो पहले। राइट सर, मैं लिख लूंगा सर। ऑलराइट, थैंक यू सर। अपना हसन, वो असले पे जो रिपोर्ट थी वो उसका क्या बना? वो आई कि नहीं? उसके स्टूडेंट वॉयलेंस के हवाले से। जी सर वो मैं डिप्यूट करता हूँ किसी को। ओके। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि अगर किसी को हालात की नज़ाकत और संगीनी का एहसास नहीं तो वो फौरन इसका एहसास कर ले और अपनी फहम व फरासत के मुताबिक इससे निपटा जाए। सर ताज़ा अहकामात क्या मौसूल हुए? अभी तक तो यही समझा जा रहा था कि इस नए अखबार की वैल्यू महज एक न्यूसेंस वैल्यू होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो इस पर इत्तेफाक किए बगैर इससे कहीं आगे बढ़ गया। वो हर इदारे पर एक मुहतसिब की तरह बैठ गया है और लगता है कि वो किसी को माफ करने के मूड में नहीं है। सर इसकी सर्कुलेशन इतनी ज्यादा तो नहीं है, फिर आखिर हमें इस कदर डरने की जरूरत क्या है? एक तो मैं आपके ये आदाद और शुमार के घपलों से तंग आ गया। आपके खिलाफ अगर अखबार में कोई चीज छपती है तो क्या आप ये पूछेंगे कि ये अखबार कितनी तादाद में छपता है? यू कांट अफोर्ड टू बी सो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। और फिर अगर 10,000 आदमी इस अखबार को खरीद कर पढ़ते हैं तो 10,000 आदमी ऐसे भी होंगे जो बगैर कोई पैसा खर्च किए इसकी पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं। माफ कीजिएगा सर, ये तो हवाई बात हुई ना। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास कोई सबूत, कोई एविडेंस तो नहीं है ना? इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जब सुबह मैं दफ्तर आता हूं तो ये तमाम अखबारात एक तरफ रखकर इस चीथड़े को चाटने लगता हूं और इसके कहे को सच मानने लगता हूं। मुझे लगता है इससे ब्लड प्रेशर हो जाएगा मुझे। सर इसमें छपने वाले सच की वजह से या सच लिखने वालों की जुर्रत इजहार के बायस? हाँ जी सर, मैं वही डिस्कस कर रहा था सर। जी आप बहुत जल्द सुन लेंगे इसके बारे में। राइट राइट, थैंक यू। जेंटलमैन, इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल और अगर किसी के भी कान में इसकी भिनक पड़ी, इमीडिएट डिसमिसल ऑफ योर सर्विसेज। जाइए कुछ कीजिए इसके बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। I'll see to it myself. सादिक साहब आप जरा इश्तिहारात की तरफ तवज्जो दें तो बेहतर होगा। जी इस बारे में बात की है कुछ लोगों से? सर आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा, बड़ा बेहतर।
मुफ्ती, नहीं मुफ्ती कहते हैं मुझे। बैठिए। नहीं मुफ्ती साहब, आपसे ज्यादा रब्ता तो टेलीफोन पे ही रहता। ये हमारे पेपर के ओनर हैं, मलिक सखावत अली। अच्छा, तो आप भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। दरअसल हमारा राब्ता टेलीफोन पर ही बेहतर रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी नौबत आ ही जाती है कि आमने सामने बैठकर डिस्कस करना ही पड़ता है। हाँ जी, जो कि कोई अच्छी नौबत नहीं होती, एंड यू नो इट। मैं ये अर्ज करने आया था कि खामखा में अपने लिए और हमारे लिए मसाइल पैदा करने से कुछ हासिल तो ना होगा। अपनी जगह ये एक नुक्ता नजर बनता तो है, लेकिन आप बुरा ना माने तो मेरे नजदीक एक मर्सनरी सोच है। प्रेस को टेम कर देने से या इसमें से स्टिंग निकाल देने से बात तो नहीं बनेगी। सारी दुनिया को हमेशा के लिए कौन बेवकूफ बना सका है? मलिक साहब, आपकी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और जाहिर है ये पैसा दरख्तों पर नहीं उगा था। आपने इसके लिए स्ट्रगल की होगी। आपका ये सारा पैसा, ये सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक टेलीफोन, एक मामूली सा ऑर्डर गारत कर सकता है। आपका प्रेस सील किया जा सकता है, आपकी डिक्लेरेशन मनसूख की जा सकती है। मुझे बताएं, आप क्या करेंगे, क्या कर लेंगे आप? खैर, ये तो बात की बातें हैं। आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूं। बात तो हम भी मुकम्मल कर चुके नहीं मुफ्ती साहब। देखिए, ये प्रेस सील कर देना या डिक्लेरेशन मनसूख कर देना ये कोई नई बात नहीं है। आप ऐसा पहली बार नहीं करेंगे और ना ही शायद आखिरी बार। ऐसा हर दौर में होता आया। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं प्रेस की बंदिश को मज़ाहमती सहाफत का सबसे बड़ा एजाज समझता हूं। इसके सामने सारे पुलित्जर एजाज हीच हैं। मेरे लिए हथकड़ी हमेशा से बहुत बड़ा जेवर रहा है। मलिक साहब, यू रिमेंबर फैज? आज बाजार में पा बचौला चलो। मेरा फर्ज था आपको हर पहलू समझा देना। The choice is yours. और मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद आप मेरी गुजारिशात पर गौर करेंगे। ये लोग गड़बड़ करेंगे। आई कैन स्मेल इट। ये इनकी ब्लफ होती है। कभी कभी धमकी बराए धमकी और कभी कभी यू राइट, गड़बड़ भी कर देते हैं। यू नेवर नो। आप कोशिश करेंगे मामला ज्यादा न बिगड़े, कोई मिडिल ऑफ द रोड रास्ता निकाले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं तहसील एडवोकेट बोल रहा हूँ। जी, पहचान लिया मैंने आपको। कैसे हैं आप? थैंक यू। दरअसल वो आज मैंने सुबह का अखबार पढ़ा। आप यकीन कीजिए, बड़ा सदमा हुआ। क्यों, कोई ज्यादा हंगामा हो गया था क्या? अजी, हंगामा क्या था, एक तूफान बदतमीजी था। आई वंडर इफ द ओपोनेंट्स कैन स्टूप सो लो। आप ठीक कहते हैं। आप देखिए ना, there should be a limit to insanity. ऐसा irrational crowd उन्होंने ट्रकों में डंप करके भिजवा दिया कि जो चीज सामने आई उसे जलाते गए, तोड़ते गए। My God. पता नहीं जी हमें कब अकल आएगी। वैसे कोई जख्मी तो नहीं हुआ? एक दो लड़कों के छोटे मोटे आए हैं, लेकिन अब इससे बड़ा जख्म सहाफत को ये क्या लगा सकते हैं? क्या ऐसी हरकतों से शराफत और इंसानियत मजरू नहीं होती? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। बस मैं कोर्ट जा रहा था, सोचा कि आपकी खैरियत दरियाफ्त करता चलूं।
بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. سر پولیس افسر آیا جی. بلاؤ انہیں. آئے جی. شکریہ. عمر، اور یہ رہی آپ کی FIR کی نقل. حسین یہ چیف رپورٹر کو دے دینا. سر جی. تھینک یو. مجھے کل ہی پتہ لگا کہ آپ لوگوں کا دفتر میری بیٹ میں ہے. جی اس کا اندازہ مجھے بھی کل ہی ہوا. آپ مذاق کر رہے ہیں. کسی پولیس والے سے مذاق کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کو تو براعظم کے براعظم زبانی یاد ہوتے ہیں کہ کون کس کی بیٹ میں ہے. بھلا اپنے دفتر کا اندازہ آپ کو کل کیسے ہوا ہوگا؟ جی براعظموں کی خبر رکھنے ہی کی تو سزا پائی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پانا شروع کی ہے. خیر، آپ یہ بتائیے آپ کو اس حادثے کا پہلے سے کچھ اندازہ تھا؟ ایس پی صاحب، فضول سوالوں میں وقت ضائع کرنے کی کوئی الگ سے ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی؟ کل سارا دن ہمارے دفتر سے آپ کے ہاں فونز جاتے رہے کہ ان لوگوں نے اس طرح سے دھمکیاں دی ہیں ہمیں. آپ کوئی پریکاشن لے لیں. آپ نے یہ پریکاشن لیا کہ اس طرف ڈیوٹی کرنے والے روٹین کے لوگ جو تھے ان کو بھی یہاں سے ہٹا لیا. دیکھیے صاحب، انویسٹیگیشن میں پولیس آپ سے ہر طرح کے سوالات پوچھ سکتی ہے. اس میں ناراض ہونا یا طیش میں آنا ایک طرح سے بیکار ہے نا. ہمارا عملہ FIR میں تمام ضروری باتیں لکھوا چکا ہے. اس کے علاوہ آپ جو کچھ پوچھ رہے ہیں اس کی آپ کو نہیں، اوپر والوں کو ضرورت ہوگی. ان کے پاس ایسی معلومات کے حصول کے لیے آپ سے زیادہ بہتر ذرائع موجود ہیں. یہ کام آپ ان پر ہی چھوڑ دیں. آپ ویل انفارمڈ لگتے ہیں، لیکن جذباتی ہونے سے مسائل تو حل نہیں ہوتے نا. آپ کا مطلب ہے آپ کا محکمہ مسائل بھی حل کر لیتا؟ یہ بات تو خبر کا درجہ رکھتی. آپ پریس والے تو ہمیشہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، بلکہ جہاں کہیں آپ لوگوں سے ممکن ہوا پبلک سے ہماری کنفرنٹیشن کرا دیتے ہیں. Now, have you come to settle some old scores or do you mean some business? تفتیش تو زیادہ تر پولیس اسٹیشن میں ہی ہوگی. اس وقت تو میں ذرا وقوع دیکھنے چلا آیا. میرے ماتحتوں نے کچھ چشمدید لوگوں کے بیان بھی لے لیے. اور ایڈیٹر صاحب، آپ کو کسی وقت موقع ملے تو تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے گا. ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں. ایس پی صاحب، اچھے آفیسرز ایسی باتیں نہیں کرتے. آپ کو ابھی نوکری کرنی ہے، ترقی پانا ہے، عزت سے ریٹائرمنٹ لے کے گھر جانا ہے. کیا یہ ساری باتیں ممکن ہوں گی؟ ڈونٹ پٹ یور سیلف آن ٹرائل. دیکھیے ایڈیٹر صاحب، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے ناانصافی نہ ہو. کمال ہے. ایک طرف تو آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ پولیس مین شپ جھاڑتے ہیں. آپ نے اخباروں میں چھپی ہوئی تصویریں دیکھی؟ جو لوگ ہمارے دفتر پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کی قیادت کون لوگ کر رہے تھے؟ وہ لوگ تھے جن کے گھر انگریزی اخبار جاتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے تو شاید کسی اسٹال پر انگریزی اخبار کو الٹ پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہوگا. پھر انہیں کس نے بتا دیا کہ اس میں فلاں چیز چھپی ہے، اس جا کے ہنگامہ کر دو؟ اب یہ تو پوچھ پڑتال کے بعد ہی پتہ چلے گا. ابھی میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں. بہرحال لیٹ دا ٹائم کم. کافی وقت لے لیا آپ کا. میرا خیال ہے چلنا چاہیے. واحد مدعی ہیں شاید جو آپ کو اپنے دفتر میں پانی وغیرہ نہیں پلا رہے. اوکے، نیور مائنڈ. اور ویسے بھی پانی کوئی پینے کی چیز ہے. وہ کیا کہتے ہیں، واٹر از فار سوئمنگ. اچھا، خدا حافظ.
जब से मैंने अखबार शुरू किया है एक अजाब मोड़ ले लिया है। क्यों? फिर कोई मसला हो गया क्या? कोई एक मसला हो तो बताऊं भी। What is the latest? सादिक साहब, आप पुराने सहाफी हैं, एक उम्र गुजार दी आपने इस खारजार में। ये खारजार खूब कहा आपने। आपको पता है कि आज कोई भी अखबार इश्तिहारात के बगैर नहीं चल सकता, और जब से मैंने ये पंगा लिया है 1 टके का इश्तिहार नहीं आया। हर महीने हजारों बल्कि लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूं। चलें, नुकसान के लिए भी तैयार हूं, लेकिन बाद में यह तो हो कि आज अगर नुकसान है तो कल फायदा होगा। साहब, आप इस एडवेंचर को पंगा मत कहें। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है और ना ही शायद आखिरी बार। ये सब कुछ होता रहा है और होता रहेगा। देखिए, इसमें जहर के प्याले पीने पड़ते हैं, दीवारों में चुनवा दिया जाता है। यू विल हैव टू वॉक टू द गैलोज। लेकिन मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। ये भी सच है। हर कोई हर वक्त और हमेशा के लिए सच नहीं बोल सकता। आपका क्या ख्याल है कि सच सिर्फ हमारे दफ्तर पे उतरता है? इसका नजुल सिर्फ आप पे होता है? सब अखबार जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन लोगों को रोक रोक कर बताना और कंधे हिला हिला कर समझाना, यह काम सिर्फ आप कर रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली कि इससे मेरी परेशानियां कम नहीं, बढ़ रही हैं। और ऊपर से आपने ऐसे लोग रखे हैं जो मेरे सर के ऊपर दुकानदारी चमका रहे हैं। और ये लोग जो कुछ लिख रहे हैं किसी और पर्चे के लेटेस्ट कॉलम में भी नहीं छपेगा, और यहां फ्रंट पेज पे न्यूज एनालिसिस के नाम पर मेरी गर्दन कटवाने के सामान हो रहे हैं। समझिए, गर्दनें काटना कोई ऐसा आसान काम भी नहीं है, और फिर मेरे स्टाफ में कोई ऐसा नहीं है जो आपको खतरे में डालकर अपनी दुकानदारी चमकाए। सब पुराने आदमी हैं, और आपका अखबार निकलने से पहले भी 2-4 लोग मुल्क में उन्हें जानते थे। वो भले हैं या बुरे, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। ठीक है सादिक साहब, अब बहस का वक्त निकल चुका है। अब मसला बहुत सीधा है कि या तो इज्जत की रोटी खाओ और सबकी सफेदपोशी कायम रखो, और या फिर तैने के चेहरियों में जलीलो ख्वार होते फिरो। आप जरा खुलकर बात करें ना, आप चाहते क्या हैं? इससे ज्यादा खुलकर और क्या कहूं मैं आपसे? आप अखबार की पॉलिसी को जरा टर्न डाउन करें। आखिर ये कन्फ्रंटेशन कब तक चलेगी? आपका मतलब है कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह? यही समझ लें। Oh my goodness. No. Never. तो आप टर्न डाउन नहीं कर सकते? कर सकता हूं, लेकिन जरा सोचिए, there should be a limit to everything. आप एडिटोरियल नर्म करेंगे तो कोई खबर तेज निकल जाएगी। भाई साहब, किसी आर्टिकल को काट पीट कर उसको हुलिया बिगाड़ेंगे तो राइटर्स लिखना छोड़ देंगे। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप कुछ दिन आराम करें? आराम बड़ा मजाहिया लफ्ज है, आराम। हाउ वेरी रिडिकुलस। आप फारे होकर जरा इस बारे में सोचें। All right. Okay. आपको अपनी रिपोर्टिंग का पब्लिक से कोई फीडबैक भी मिलता है या नहीं? सर, खतों के कॉलम से तो ऐसा लगता है कि लोग हमारे अलावा दूसरा कोई अखबार पढ़ते ही नहीं। नहीं, ये एक रिपोर्टर के लिए बेसिकली गलत सोच है। आपका असल बैरोमीटर वो रीडर नहीं है जो आपको खत लिखता है। वो तो एक तरह से आपको ऑप्ट कर चुका है ना। आप
उन्हें देखिए जो आपको खत नहीं लिखते, या लिटरल से जो आपके अखबार खरीदने या पढ़ने पर आमादा नहीं है। वो क्यों आमादा नहीं है? सर, आप किसी को जबरदस्ती तो अखबार नहीं पढ़ा सकते ना। देखिए, एक रीडर आपका अखबार खरीदने के बजाय एक राइवल पर्चा स्टॉल से खरीद लेता, उसे क्या चीज मजबूर करती है? थिंक ओवर इट। ज़ाहिर है सर, रीडर सच मांगता है और उसे सच जहां नजर आएगा वो उसे कबूल कर लेगा। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि सच तो शायद सारे ही अखबार बोलते हैं, लेकिन क्या वजह है कि उनमें से कुछ अखबार बिकते हैं और कुछ वैसे ही पड़े रहते हैं? ये सच बोलने का तरीका है कि सच कैसे बोला जाता। और सर, वेल सर, अब आप एक घर को ही ले लीजिए, 4-5 बहन भाइयों में से झूठा कोई नहीं होता, सच सारे बोलते हैं, लेकिन एतबार सिर्फ एक की बात पर आता है, इसलिए कि वो सच में डंडे नहीं मारता, बाकी डंडे मार जाते हैं। तो गोया सारी बात कमिटमेंट की हुई ना सर? हाँ, लेकिन हमारी कमिटमेंट ऊपर वालों को पसंद नहीं आई। उनका मतलब है कि हम भी दूसरे वाला सच बोले, डंडी मारने वाला? नहीं, असल में वो चाहते हैं कि हम अपनी पॉलिसी को थोड़ा टोन डाउन कर लें। यानी सच ही को टोन डाउन कर ले? मेरे नजदीक ये एक अजीम जालसाजी होगी सर। देखिए, आप समझने की कोशिश करें। सर, क्या ये अजीब इत्तेफाक नहीं कि आप जो तमाम अरसा हमें सच के लिए लड़ने का दर्स देते रहे, आज आप ही मसालियत और कंप्रोमाइज की बात करने लगे? क्या मसालियत या कंप्रोमाइज एक कमिटेड सहाफी के लिए मौत का दर्जा नहीं रखती? क्या आज के दौर में मसालियत या कंप्रोमाइज का मतलब मुखालिफ कुव्वतों के आगे घुटने टेक देना नहीं? क्या टोटल सरेंडर के बाद किसी सहाफी को यह हक पहुंचता है कि वो कलम के तकद्दुस को अपने नापाक सोच से आलूदा करे? अब आखिर हमारे एग्जिस्ट करने का कौन सा जवाब बाकी रह जाता है सर? Come on, be relaxed. बेटा, तुम 100% सही कह रहे हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भी 100% गलत नहीं है। हमें मारूजी हालात के मुताबिक अपना एक लायामल मरतब करना होगा। हालात खराब हो गए तो मुलाजमतें भी जा सकती हैं। मुलाजमतें? दोस्त तक साथ छोड़ देते हैं, फाका कशी की नौबत आ सकती है। मैं तो फिर भी किसी तरह से भला या बुरा कलम घसीट कर गुजारा कर लूंगा, लेकिन जिस किस्म की राइटिंग और रिपोर्टिंग की तुमने बुनियाद डाली है वो कौन कबूल करेगा? कौन सा अखबार ऐसा है जो तुम्हें कबूल करेगा? कोई ऐसा नहीं है ना। तो फिर क्यों डॉन क्योटी की तरह विंड मिल से लड़ते फिरें? बताओ। लेकिन सर, मसालियत की रोटी हलक से नीचे कैसे उतरेगी? और फिर मैं ऐसी सरशकमी से फाका कशी को बेहतर समझता हूं। मैं डॉन क्योटी की अकीदत को पागलपन या एडवेंचरिज्म कह के डिसमिस नहीं कर सकता। बेटा, रोटी इस समाज की एक स्टार्क रियलिटी है, हाँ? और ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। रोटी चाहे मज़ाहमत से कमाई जाए या मुफाहमत से, हलक से बहरहाल उतरी जाती है, उतरती रही है, उतरती रहेगी। You know what? You'll take time, but you'll learn it. क्या बात है भाई, ये चुप क्यों लग गई? अब ये भी तुम्हें समझाना पड़ेगा।
अच्छा, तो हो गए तुम भी शिकार दफ्तरी टेंशन का। यार बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं सोचता हूँ छोड़ दूं। यार अगर मैं कोई मशीन मैन होता तो ठीक है, चलता रहता, लेकिन यहां तो ब्रेन वर्क इन्वॉल्व है। प्रेशर मुझसे नहीं लिखा जाता। बस छोड़ दी हिम्मत। बड़ी बातें करते थे रेजिस्टेंस की। यही तो वक्त है लड़ने का। क्राइसिस ही में पता चलता है इंसान का। और वो वारिस शाह ने कहा है कि जातें अपना अपना जौहर उस वक्त दिखाती हैं जब ओखली में पड़ती हैं। यार तुम लोगों का एक फायदा तो हुआ मुझे। क्या मतलब? यार बहुत हौसला देते हो। मुझे फैसला करने में आसानी हो गई। मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे यहीं रह के लड़ना है। साथियों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि आज का दिन हमारे अखबार की तारीख का सबसे मनहूस तरीन दिन है। आज हम अपने हाथों से एक ऐसे शख्स को अलविदा कह रहे हैं जिसको शख्स या शख्सियत कहना भी बहुत बड़ी अंडरस्टेटमेंट होगी। भाइयों, सादिक साहब एक ऐसी कसीरुल जहद शख्सियत है कि इस दफ्तर के सब्ज़ारों में खिलने वाले गुलाबों से बरसों तक इनकी महक आती रहेगी। इनके दफ्तर के बाहर खिलने वाली बोगनविला इनके ताबिंदा बातन के रंग बखेरती रहेगी। रोशन दिमागी और खुदागाही का जो पौधा इन्होंने लगाया है, आइए हम अहद करें कि अपने खूने दिल से इसकी आबियारी करेंगे और सरसर की यलगार से इसे महफूज रखेंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और दरखास्त करूंगा जनाब सादिक साहब से कि वह हमें अपने इरशादात आलिया से नवाजें। जनाब सादिक साहब। गुबार राह है हम लोग, कहर तूफान भी, सहा तो क्या न सहा और किया तो क्या न किया। काबिल कदर साथियों, आज जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो आपके चेहरों पर फैली हुई उदासी है। इस तरह की सूरत हाल हम जैसे साफ को अखबार के लिए पहली मर्तबा पैदा नहीं हुई। ऐसा होता रहा है और ऐन मुमकिन है ऐसा होता भी रहे। साथियों, एक आदमी के आ जाने से या एक आदमी के चले जाने से अखबार बंद नहीं हुआ करते। आदमी आते रहेंगे और आदमी जाते रहेंगे, लेकिन अखबार एक इदारा है जो चलता रहेगा। मैं आपके पास रहूंगा, मुझे आप हम वक्त अपने पास ही पाएंगे। वो माओ हो कि लुमंबा, सुकारनो हो कि फैज। वो माओ हो कि लुमंबा, सुकारनो हो कि फैज। सभी का एक ही नारा, सभी की एक सलीब।
سبھی ہیں دور نظر سے، سبھی دلوں کے قریب. مجھے آپ چمکتی نظروں، مسکراتے چہروں اور جواں ارادوں سے رخصت کیجیے، تاکہ مجھے احساس نہ ہو کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو شکست ہوئی ہے. فیض کے ایک شعر کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو. کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو. کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے پھلا دیا. یار بال بچے دار آدمی ہے، کیا بنے گا بیچارے کا؟ یار اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ بہتری کرتا ہے، وہ سب کا رازق ہے یار. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا کسی اور اخبار میں جا رہے ہیں کیا؟ معلوم نہیں. ویسے یار شعر بڑے اچھی بول رہا تھا. تجھے سمجھ آ رہی تھی؟ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے، نوٹ کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ذہنوں سے یہ بات کھرچ کر نکال لیں کہ اخبار میں جب تک سچ نہ چھاپا جائے وہ بکتا نہیں ہے. یہ بات آپ کے گرو آپ کے دماغ میں ڈال گئے ہیں. میں جانتا ہوں بڑی مشکل سے نکلے گی یہ بات، بٹ یو نو وی ہیو ٹو رن دا پیپر. مالکوں کی کروڑوں کی انویسٹمنٹ آپ کے سچ کی خاطر غارت نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جس پریس کانفرنس یا فنکشن میں خود جاؤں اس میں کسی دوسرے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. سیاسی خبروں میں اوپر والوں سے کوئی کنفرنٹیشن مول نہیں لی جائے گی، کیونکہ تصادم برائے تصادم میں کبھی کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا ایکسپٹ آف کورس ریپینٹنس. میں دیکھوں گا کہ ہمارے پرچے کو اشتہار کیسے نہیں بنتے. آپ تعاون کیجئے. امید ہے جس تھالی میں کھائیں گے اس میں آپ سوراخ نہیں کریں گے. اور یہ سچ کا خناس آپ کو سر سے نکالنا ہوگا. اگر طبیعت نہ مانے باہر کا گیٹ کھلا ہوا ہے، آپ کسی بھی وقت باہر جا سکتے ہیں. دیکھیں سر، جو فوری نوعیت کی باتیں ہیں وہ پہلے ہو جانی چاہیے. ہاں میں اور کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اب تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے جی کہ اردو اخباروں کے نمائندے تو گورنر اور وزیر اعلیٰ کے دوروں پر ان کے آگے پیچھے دوڑتے پھرے، اور انگریزی اخبار کے نمائندے کو سیکیورٹی والے ایئرپورٹ کے گیٹ پر ہی روک لیں. واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے جی. رپورٹر جاتا تو گورنر کے کوریج کے لیے ہے اور واپسی پر پولیس کے خلاف سٹوری لکھ کر لے آتا ہے. میں گورنر کے پی اے سے بات کرتا ہوں. سر صرف بات کرنا ہی کافی نہیں ہے جی. آپ ان سے بالمشافہ ملوا دیں، بلکہ ان سے بتا دیں کہ سرکاری تقریبات اور سرکاری دوروں کے لیے ہمارا نمائندہ خصوصی جایا کرے گا. آپ مطمئن رہیں، یہ آج ہی ہو جائے گا، نو پرابلم. ہاں وہ آپ کی رہائش کا کیا ہوا؟ بس جو بنگلہ مجھے پسند آیا تھا وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ خالی نہیں کریں گے. مجبوراً مجھے دوسرا تو لینا ہی تھا نا جی. آپ کی مسز بچوں کے لیے بہت ورید تھیں، پھر تو میں پوچھنا ہی بھول گیا. جی ہاں، وہ پریشانی البتہ ہے سر. دراصل وہ اسکول کی پرنسپل کوئی فارمر خاتون تھی، خاصا پرویکٹیو قسم کا ٹیمپرمنٹ تھا. پہلے تو کہنے لگی کہ could you bring someone more educated؟ میں نے کہا بی بی ہوش کریں، you are no more ruler of the subcontinent. پھر بچوں کو ٹیسٹ ویسٹ کے لیے بٹھا دیا. اب آپ کو تو پتہ ہے نا سر، ہمارے دیسی بچوں نے کیا خاک ٹیسٹ دینا تھا. داخلہ ملا یا نہیں؟ کہاں صاحب، کانوں کو ہاتھ لگائے. لیکن میں نے بھی ان کے اسکول پہ ایک سٹوری کی ہے، کل چھپ گئی نا جی. The woman may come to her senses.
जरा फैक्ट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक मेलिंग का इल्जाम आ जाए। डोंट वरी सर, आई हैव डबल चेक्ड एवरीथिंग। कुछ रिपोर्टर बता रहे थे कि उनकी बहुत कम खबरें लग रही हैं, ज्यादातर रोक ली जाती हैं। जी दरअसल वो इश्तिहारात इस कदर आने लगे हैं कि अब तो स्पेस का मसला शुरू हो गया है, बल्कि मुझे तो लगता है सर कि अब तो पेज बढ़ाने ही पड़ेंगे। मुश्किल होगा, हम तो पहले से ही अंडरस्टॉक्ड हैं। जी हाँ, दरअसल हमारे वो सच पुत्र भाग गए ना, वरना तो स्टाफ का कोई मसला ही नहीं था। खैर, अच्छा स्टाफ तो अखबार के लिए हमेशा से मसला रहा है। ये बताइए कि अवेलेबल स्टाफ में कोई ट्रबल मेकर तो नहीं है? बिल्कुल है। कल उन्होंने मेरे खिलाफ भी नारे लगाए कि ये एजेंट है, प्लांटेड आदमी है और पेट है और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मेरी नजर है उन पे, मैं आवाज कर रहा हूं उनको। तुमने कभी सोचा है क्या? इंसानी रिश्तों के बारे में? इंसानी रिश्ता के बारे में? मेरा मतलब है मेरे और तुम्हारे दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप हुई है, और मैं इसे कोई नाम नहीं दिया, तो तुम इस रिलेशनशिप को कहाँ प्लेस करोगे? मेरा मतलब है तुम्हारे नज़दीक इसकी कोई अहमियत है? अहमियत तो खैर ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अच्छा किया तुमने इसे कोई नाम नहीं दिया। तुमने कभी लेमैन और इंटेलेक्चुअल की मोहब्बत को कंपेयर किया? इंटेलेक्चुअल की मोहब्बत बेशुमार लेवल्स पर होती है, इसमें बड़ी सतहें होती हैं, और फिर बैक वक्त इंतहाई शदीद भी और कोल्ड ब्लडेड भी। जबकि लेमैन की हर तरफ डिवोशन ही डिवोशन, या मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट वाली। तो तुम्हें कौन सी मोहब्बत अपील करती है? ये तुम पूछ रहे हो? क्या मेरे पूछने का सवाल गैर अहम हो जाता है? कितनी बार कहूँ कि मेरे नज़दीक ना तो तुम्हारे सवाल गैर अहम है और ना तुम, दोनों इम्पोर्टेंट। आपने कभी सर्कुलेशन साइट का भी चक्कर लगाया या? सर्कुलेशन साइट पे क्या हो गया सर? यानी आपको अभी और कुछ होने का भी इंतजार है? तकरीबन तमाम बड़े शहरों के एजेंट्स अपने ऑर्डर्स आधे से भी ज्यादा कम कर चुके हैं, और बाद ने तो साफ कह दिया कि आपका अखबार कोई नहीं उठाता। सर इसमें मेरी कोई शॉर्ट कमिंग हो, कोई साथी कमी तो आप बता दीजिए। मैंने आपके पुराने लिखने वालों को फोन किए, टेलेक्स भेजे, खुद जाकर मिला, बल्कि सर यहाँ तक कि मैंने उन्हें मासी बढ़ाने की भी पेशकश की। कोई लिखने के लिए आमादा नहीं होता जी, तो आप बता दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ सर? तो ये बासमीर कलमकारों की मुझे समझ नहीं पड़ी, जैसे जैसे पैसा तो उनके लिए कोई कशिश ही नहीं रखता। अजीब मखलूक है सर। तो एक से मैंने कहा कि अच्छा चलें, आप हमारे लिए एडिटोरियल ही लिख करके भेज दिया करें, उसमें तो आपका नाम नहीं छपेगा जो आपको शर्म आए। तो कहने लगे कि शर्म कोई दूसरों से थोड़ी आती है, शर्म तो अपने आप से आती है। वैसे सर हमारे इश्तिहारों की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग जा रही है, इंफॉर्मेशन वालों की गुड बुक्स में ले गए हैं सर आपको, फिर भी आप नहीं मानते। भाई देखो, हम बिजनेस वाले लोग सिर्फ एक जबान समझते हैं, पैसे की जबान। सिंगल ट्रैक के होते हैं ना, हम गुड बुक्स या बैड बुक्स नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि 2 करोड़ रुपया बैंक से कर्ज ले रखा है, और इस पर हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट स्नोबॉल की तरफ बढ़ता जा रहा है। अखबार को बहरहाल बिकना चाहिए। यार यू, ये शुरू में तो तुम ठीक ठाक एक्साइटेड थे, कुछ बैठ से गए हो, ये हुआ क्या है तुम्हें? मैं हर अच्छे जर्नलिस्ट की तरह साबिर और शाकिर हूं। नाम भी अयूब रखा है, साबिर होना भी गोया जरूरी है। तुम खुद सोचो, असलहे की स्मगलिंग कितना टची इशू है। कौन पसंद करता है इस पर बात करना प्रेस वालों से? लेकिन मैंने पूरा हफ्ता जाया किया है इसके सर्वे में।
बस यार फॉरगेट इट। यार ये तुम बात तो करके देख लेते, आखिर कौन सी कयामत टूट पड़ती अगर ये मजमून छप जाता। तुम कमाल करते हो, उन्हें खुद एहसास होना चाहिए कितनी मेहनत हुई है इस पे। कौकब, तुम इसकी ये स्टोरी अपने मैगजीन के किसी कोने में नहीं लगा सकती हो? बड़ा डिप्रेस है बेचारा। भाई मैं तो लगा दूंगी, लेकिन अगर मलिक साहब ने मेरी बोटियां कौओं के आगे डाल दी ना तो तुम कुछ बिगाड़ लोगे उनका। मलिक साहब के कुछ दोस्तों की नाराजगी का खतरा है यार। या तो बंदा दोस्तियां निभाए या अखबार चलाए, दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। एक रिपोर्टर 20-25 आदमियों का इंटरव्यू भी करके ले आए और वो शायद भी ना हो। अजीब महंगा महसूस करता हूँ अपने आप को। अच्छा अब ज्यादा मॉर्बिड ना हुए जाओ, चाय पियो, होता रहता है इस तरह। देखिए मलिक साहब, आपने अखबार पर आने वाले हर नए दौर को अंदर बाहर दूर नजदीक हर तरह से देखा है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें हर चीज मौजूद होने के बावजूद किसी चीज की कमी। सर आपको पहेलियां बुझवा के बात करने में मजा आता है। उन्हें बात करने दो, वो तुमसे बेहतर बात करना जानते हैं। बेसब्रे मत बनो। देखें, आप लोग मेरे साथ बारीकियों में न पड़ा करें, सीधी बात क्या करें। अखबार तो आप लोगों ने चलाना होता है। अगर आप लोगों ने कोई कमी महसूस की हो तो मैं तैयार हूं। आखिर मैं किस लिए हूं, और पहले कौन सी कमी है जो मैंने पूरी ना की हो। देखिए जनाब, हम तमाम कारकुन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर आप हमारी मदद और रहनुमाई के लिए हमारे पुराने एडिटर और मोहसिन जनाब सादिक अजीज साहब को वापस लाने पर राजी हों तो इखबार की तरक्की के इम्कानात खासे रोशन और वाज़ेह होंगे। आपकी खुशी मेरी खुशी है। अगर आप लोग वाकई समझते हैं कि सादिक साहब के आने से अखबार बेहतर हो जाएगा, और मुझे यकीन है कि बेहतर होगा, तो फिर आप सब लोग मिलकर उनके पास जाएं। मैं खुद जाती तौर पर उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। अगर किसी वक्त कोई ज्यादती हुई हो तो हम उसके अजाले और तलाफी के लिए तैयार हैं। शुक्रिया मलिक साहब, आपने बड़े प्यार और हमदर्दी से हमारी बातें सुनी। हम आपको बहुत जल्द अपने साथ चलने की जहमत देंगे। हम आपसे खासे शर्मिंदा हैं। अरे नहीं भाई, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। असल में सर हमारी वर्कर्स की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। अब इसके बगैर किसी भी मुनज़्ज़म जद्दोजहद का तस्वुर नहीं किया जा सकता। बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। तस्वुर क्या, आपने तो बाकायदा जद्दोजहद करके दिखा दी। असल में सर हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हमने मालिकान को उनकी गलती का एहसास दिला दिया। बात यह है असल कि हम क्लास करेक्टर का जिक्र सुनते और पढ़ते तो बहुत आए हैं, लेकिन इसका अमली मुजाहरा देखने को अब मिला। देखो, जो बिजनेस कम्युनिटी का तो सारा खेल ही मफादात पर होता है। जरा सी मफादात पर जद पड़ी इनका करेक्टर सामने आ जाता है। ये सारी बातें उनके साथ हुई हैं, खुल कर हुई हैं। फिर फैसला क्या हुआ? फैसला तो जी आपने करना है। हम तो समझते हैं कि हमारे मौक़िफ़ की जीत असल में बातिल की क़ुव्वतों की शिकस्त है, लेकिन जब तक आप नए सिरे से अखबार में शामिल होकर बाकायदा तौर पर हमारी क़यादत नहीं संभाल सकते, ना हम उनकी शिकस्त को मुकम्मल समझते हैं और ना अपनी फतह को आते हैं। देखिए, मैं आपके जज्बात का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे एक नई आजमाइश में मत डालिए प्लीज। आप इस आजमाइश की पुकार सुने सर। ये असल में सच की फतह है, और सच की फतह में डामाडोल होना या डबल माइंडेड होना ईमान की कमजोरी की दलील है। ईमान कमजोर होता तो अखबार से अलग होने की नौबत भी शायद ना आती। लेकिन अब जिस चैलेंज का मुझे और मेरे साथियों को सामना है, इसका तकाजा है कि
मैं पीछे न हटूं। सर अगर गुस्ताखी ना हो तो हमारे एक साथी बाहर दरवाजे पे आपके फैसले के मुंतज़िर हैं। इजाज़त हो तो उन्हें बुला लें। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? बुलाइए उन्हें। अरे ये तो बहुत ज्यादती की बात है। आज क्या हो रहा है?